Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about maxillary division of trigeminal nerve, which is second branch of the trigeminal nerve. The first one is ophthalmic, the third one is mandibular. So I am going to discuss about only maxillary branch. Maxillary branch इसके कोर्स के बारे में, इसके ब्रांचेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा. So trigeminal nerve basically arises from the bones in which there are four nuclei. From these four nuclei, one motor and three sensory branches comes out and unite to form a trigeminal ganglion. Trigeminal ganglion. From this trigeminal ganglion, three division arises. The first one is ophthalmic, which is sensory. The second one is maxillary, which is also sensory, and the third one is mandibular, which is mixed. So we will discuss about maxillary division. Maxillary division of trigeminal nerve basically arises from the anterior portion of the trigeminal ganglion, and it comes and move forward and move into the lateral wall of the cavernous sinus. From the cavernous sinus, it moves towards foramen rotundum, from which it comes out of the cranial cavity. This is foramen rotundum. From the foramen rotundum, when it comes out, it goes into the pterygopalatine fossa. Pterygopalatine fossa. In this pterygopalatine fossa, it moves towards a fissure which is called inferior orbital fissure. Next to this inferior orbital fissure, there is a canal which is called inferior orbital canal. When it comes out of this canal, it moves into the foramen, which is infraorbital foramen, and comes out on the face and gives some branches. So this is all about its course. So what are its branches and how it's come out? Branches are, it can be divided into intracranial and extracranial. Intracranial is only one branch that arises inside the cranium before the foramen rotundum, which is called middle meningeal nerve. Middle meningeal nerve. It gives sensory supply to the dura mater of the brain. Then comes out to the extracranial. When it comes out of the foramen rotundum, it gives extracranial branches, and first branches which they are giving in pterygopalatine is two roots which comes out and joining to form a ganglion which is called pterygopalatine ganglion. From this ganglion, four branches arises. Orbital branches, which supplies the orbital part, nasal branches, palatine branches, pharyngeal branches.
ऑर्बिटल ब्रांच विच सप्लाई सम पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, कंजंक्टिवा। नेजल ब्रांच एक्स्ट्राक्रेनियल। सो एक्स्ट्राक्रेनियल में आपके पास टेरिगोफेलेटाइन गैंग्लियन, जिसके ब्रांचेस है नेजल ब्रांच, पेलेटाइन ब्रांच, ऑर्बिटल ब्रांच एंड फेरेंजियल ब्रांच। जो नेजल ब्रांच है इसको हम कहते हैं नेजोफिलेटाइन नर्व, जो कि इंसिसियो फोरामिन से निकलता है बिटवीन द इंसाइजर्स। जो पेलेटाइन ब्रांचेस है वो पेलेटाइन फोरामिन से निकलते हैं और ये लेसर और एंड ग्रेटर पेलेटाइन नर्व है। ग्रेटर पेलेटाइन नर्व जो कि आगे हार्ट फेलर के इंटीरियर पोर्शन को कवर करता है, और जो लेसर पेलेटाइन है ये बेसिकली टूवर्ड्स टॉन्सिल एंड टूवर्ड्स द सॉफ्ट फेलेट इसको सप्लाई करता है। फेरेंजियल ब्रांच ये नेजल फेरिंग्स को सप्लाई करते हैं, नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इसको सप्लाई करता है। तो ये इसके टेरिगोफिलेटाइन ब्रांचेस है। इसके बाद एक और ब्रांच निकलती है मैक्सिलरी डिवीजन से डायरेक्ट यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं ज़ैगोमेटिक नर्व। ज़ैगोमेटिक नर्व फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकल के दो में डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं ज़ैगोमेटिको टेम्पोरल, एक को कहते हैं ज़ैगोमेटिको फेशियल। ज़ैगोमेटिको फेशियल एक फोरामिन से निकलता है जो ज़ैगोमेटिक बोन में होता है, और ज़ैगोमेटिको टेम्पोरल भी एक फोरामिन से निकलता है छोटी सी, जो कि ज़ैगोमेटिक बोन में होता है। टेम्पोरल ये टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करता है और फेशियल ये चीक को सप्लाई करता है बेसिकली। ज़ैगोमेटिक नर्व के साथ इसके डिवीजन से पहले एक नर्व मिलती है रास्ते में, जो कि ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है नेज़ोसिलरी, जो कि आके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है इसको। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू दो आपकी जो ग्लैंड्स हैं लेक्रिमल ग्लैंड्स, इसको सप्लाई करती है, इसके साथ मिल जाती है रास्ते में नेज़ोसिलरी, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। यहाँ पर एक और नर्व निकलती है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। दिस पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व सप्लाइज 7, 8 जो आपकी मोलर्स है और 6 की ओनली डिस्टल पोर्शन को यह सप्लाई करती है टीथ को, इन टीथ को यह सप्लाई करती है। इसके बाद जो ही ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करके इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन में आ जाता है, इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में, तो इसको फिर कहते हैं इंफ्राऑर्बिटल नर्व, जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन या टर्मिनल ब्रांच है मैक्सिलरी की डिवीजन की। सो फोर्थ वन इज इंफ्राऑर्बिटल नर्व। इंफ्राऑर्बिटल नर्व, यहाँ से इंफ्राऑर्बिटल नर्व से पहले यहाँ पर दो नर्व निकलती है, जिसमें एक को कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, दूसरे को कहते हैं मिडल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। जो मिडल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व है और जो इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व है, ये टीथ को सब इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व बेसिकली इंसाइजर्स प्लस कैनाइन, और जो मिडल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व है प्रीमोलर प्लस मेजियोबकल रूट ऑफ द 6, मेजियोबकल रूट ऑफ फर्स्ट मोलर। सो ये इसके ब्रांचेस हो गए। जो ही ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन से निकलता है तो इसकी फिर ब्रांचेस फेस में आते हैं, और फेस में इसकी नेज़ल ब्रांच जो कि नोज़ को सप्लाई करती है, लेटरल पार्ट ऑफ द नोज़। लेबियल ब्रांच है जो कि
आपकी अपर लिप को सप्लाई करती है, और एक है कंजंक्टिव पल्पेब्रल फिशर वाली, जो कि आपकी पल्पेब्रल फिशर को सप्लाई करती है। पल्पेब्रल फिशर, पल्पेब्रल ब्रांच। सो ये इसके स्किन पे ब्रांचेस है फिर। सो ये सारा मैक्सिलरी डिवीजन के बारे में हो गया, कहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस देता है। सो ये इट्स ऑल अबाउट मैक्सिलरी डिवीजन। होप यू विल गेट सम पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।